हाँ जी, 12th class for economics. Now I'm discussing this chapter third from your book because every word is very important from NCERT. Question can come in any way from NCERT directly. So we will read out all the things from NCERT, and many students of your class, they are also reading the NCERT. So I think that first we should go with NCERT, then we can discuss the questions afterwards. And I will give you the assignment of question simultaneously, so don't worry. So now first of all we are reading the chapter introduction. You have studied in the previous chapter that since independence India followed the mixed economy. So what type of economic there is? Mixed economy. Mixed economy means they are the feature of capitalist and socialist economy exist in the case of mixed economy. Means all the ownership is with government and also with the private sector also. Framework by combining the advantage of the capitalist economic system with those of the socialist economic system. So the feature of both the system exist in the case of mixed economy. Fine. Here the question can come, what type of economy India adopted? That is mixed economy. And explain. So you have to explain mixed economy also in that way. This question can come of 3 marks. Some scholars argue that over the years these policy resulted in the establishment of a variety of rules and laws which were aimed at controlling and regulating the economy, ended up instead in hampering the process of growth and development. So this is the point which is some scholar means some economics argue that over the year when the year were passing by that time, the people were not satisfied with the mixed economy, and that is why they argued in the same way. So ended up that is other state that India, which started its development path from the near stagnation, has since been able to achieve growth in saving, develop a diversified industrial sector, and which produces a variety of goods, and has experienced sustained expansion of agricultural output, which has ensured food security. So other state then that India means other states have started a different type of economy, and they achieved all these achievements. So we are talking about India. In 1991, India met with the economic crisis relating to its external debt. External debt was the main crisis in 1991 that arises due to the industrial policy or foreign sector policy from 1950 to 1991. So the government was not able to make repayment on its borrowing from abroad. Foreign exchange reserve, which we generally maintain to import petrol and other important items, dropped to levels that were not sufficient for further compounded by rising prices of essential goods. So that was a problem, big problem. What was the main, the question can come from this paragraph, what was the main problem arises in 1991. So this is the main problem arises, and what was the main problem arises after adopting all the policies from 1950 to 1990. क्या प्रॉब्लम थी 1950 से लेकर 1990 तक में जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई उसमें प्रॉब्लम क्या आई? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि वी आर नॉट सफिशिएंट विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सफिशिएंट नहीं था कि हम अपनी पेमेंट कर सके, इवन फॉर फोर्टनाइट, मतलब 14 दिन आधे महीने की भी पेमेंट कर सके. हमें जो बाहर से क्या मंगवाना पड़ता था, पेट्रोल, एसेंशियल आइटम, हम इसकी पेमेंट भी नहीं कर सकते थे. यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है. ऑल दीज लीड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ new set of policy measure which change the direction of our developmental strategy. ये हमने अडॉप्ट तो इसलिए की बिकॉज कह सकते हो कि वी वर नॉट एबल टू पे ऑल दैट, तो हमने तो समझ लो मजबूरी में ही करी है, लेकिन इससे हमारी बहुत डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टोटल डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई. तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस, मेजर दैट द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि बाकी सेक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब इसके अंदर तुम पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में. बैकग्राउंड. The origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy in 1980s. 1980s में सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस थी, इसलिए इस ईयर को मार्क किया गया है. There was an inefficient management. Many public sector were performing very bad, and all the fund invested by government have been wasted by that time. So we know that next pattern, we know that for the implementing various policy and its general administration, the government generates fund from various sources such as taxation, running of public sector enterprises, etc. सो ये जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बनाई थी उस वक्त, उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही थी, ठीक है, और जिससे कि अपने पब्लिक सेक्टर को भी रन कर सके, जो कि बहुत हैवी एक्सपेंडिचर हो गया था गवर्नमेंट के लिए, और जो कि गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा था. व्हेन एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम, जब ये द गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस द डेफिसिट फ्रॉम बैंक एंड ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक पीपल विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था पब्लिक सेक्टर का भी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर रिटर्न कुछ दे नहीं रहा था, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या किया, गवर्नमेंट ने बोरो करना शुरू किया. कहाँ से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है? बैंक से,
लोगों से, पीपल से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तीनों की गवर्नमेंट ने हेल्प ली। 1980 से हेल्प ले रही थी, तभी 10 साल में इतना बुरा हाल हो गया ना, 1991 में पेमेंट करने के पैसे ही नहीं बचे। व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स लाइक पेट्रोलियम देन वी पे इन डॉलर्स, वी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट। ठीक है, जब भी हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट हमको इंटरनेशनल करेंसीज में करनी पड़ती है। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, इसलिए डॉलर्स का नाम आ रहा है इसके अंदर, जो कि आप एक्सपोर्ट से अर्न करते हो। आप खुद नहीं पब्लिश कर सकते डॉलर आपको अर्न करना पड़ता है। तो कोई आपका सामान लेगा तभी तो आपको डॉलर मिलेगा, या फिर अपना गोल्ड सेल करो तब आपको डॉलर मिलेगा, गोल्ड सेल करके डॉलर परचेज करो, तो पेमेंट तो इसी करेंसी में होती है, तुम्हारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती। नाउ डेवलपमेंट पॉलिसी रिक्वायर्ड दैट इवन दो द रेवेन्यू वर वेरी लो, द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट प्रॉब्लम like unemployment, poverty and population explosion. These are the problem arises in 1990s। कौन सी? अनएम्प्लॉयमेंट, poverty and population explosion हो रहा था, बहुत ज़्यादा population हो रही थी और revenue बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, which was expected, which was required by that time comparatively. The continued spending on development program of the government did not generate additional revenue. गवर्नमेंट जितना एक्सपेक्ट कर रही थी, गवर्नमेंट को जितना चाहिए था उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। मोर ओवर द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल to generate sufficiently from internal resources such as taxation। तो टैक्सेशन तो एनफ था ही नहीं जिससे कि गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर पाती, क्योंकि गुड्स के प्राइस भी बढ़ते जा रहे थे। When the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns such as the social sector and defense, there was a need to utilize the rest of its revenue in a highly efficient manner। देखो, गवर्नमेंट जो थी हमारी डेवलपिंग कंट्री थी, डेवलपिंग कंट्री की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोशल सेक्टर और डिफेंस पे खर्च करना पड़ता है। डिफेंस में खर्च नहीं करोगे तो योर कंट्री विल बी अटैक्ड बाय द योर नेबर कंट्री, और आपको पता ही है वी आर नॉट हैविंग गुड नेबर्स। एंड सोशल सेक्टर पे भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी थी तो लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। बहुत सारे जो वल्नरेबल सेक्टर था हमारे पास, बहुत सारा लो सेक्टर था, लोअर इनकम लेवल सेक्टर था, जिसके लिए गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता था सोशल सेक्टर पे। अब भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, मैनी मोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो ये रिटर्न नहीं देता था, गवर्नमेंट को इस पर खर्च करना पड़ रहा था जिससे रिटर्न नहीं मिल रही थी। एंड देयर वाज अब ज़रूरत थी गवर्नमेंट को बहुत हाईली एफिशिएंटली मैनर से खर्च करे, जिसका मगर जितनी भी ये पब्लिक सेक्टर थी दे डिड नॉट डेवलप सो मच सच टाइप ऑफ गुड्स विच कैन बी डिमांडेड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी अच्छी गुड्स नहीं बनाते थे पब्लिक सेक्टर की जिसको सब डिमांड करें। तो पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी बहुत बुरी थी। नाउ द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर, फाइन। At time, our foreign exchange borrowed from other countries and international financial institution was spent on meeting consumption need. Neither was an attempt made to reduce such there was an attempt to reduce such profligate spending, nor sufficient attention was given to boost export to pay for the growing import। तो गवर्नमेंट के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था, जो गवर्नमेंट ने बोरो तो किया ही था, ठीक है, बोरो किया था हमने बहुत सारा पैसा उस वक्त, तो कुछ भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया गया, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे उस बोरिंग को ये बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते। कई बार ये भी ब्लेम लगता है कि जितना बोरिंग आपने किया सारा आपने स्विस बैंक में जमा करा दिया, लीडर्स ने करप्शन की और एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया गया, तो ये सब ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर लगते रहते हैं, जो भी उस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट थी। In the late 1980s, government expenditure began to exceed this revenue. Now it happens by that time by such large margin that meeting the expenditure through borrowing becomes unsustainable। ये मतलब सहन करना ही बड़ा मुश्किल होता गया क्योंकि एक्सपेंडिचर का लेवल बढ़ता गया। Prices of many essential goods rose sharply। Import grew at a very high rate without matching growth of export। Import बढ़ा और export नहीं बढ़ा। Import बढ़ने से उल्टा हमारा बहुत ज़्यादा foreign exchange reserve drain out हो गया, यानी कि बाहर निकल गया, और हमारा export नहीं बढ़ा क्योंकि we were not able to produce such a quality। ठीक है ना, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से जो आपका प्राइवेट सेक्टर था वो ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि आप उसको अननेसेसरी प्रोटेक्शन देते रहे, और पब्लिक सेक्टर आपका वैसे ही परफॉर्म बहुत बुरा कर रहा था। तो एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। यानी कि हमारे पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था कि हम 2 हफ्ते से ज़्यादा इंपोर्ट और नहीं कैरी ऑन कर सकते थे, और जबकि हम डिपेंडेंट कंट्री हैं, हम पेट्रोल के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड करते थे। There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needs to be paid to the international lenders, and also no country or international funder was willing to lend to India। ये इतना बुरा हाल हो गया था, देखो साफ साफ तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ, इतना बुरा हाल हो गया था हमारा तब। इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज के हम डेट में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, बाय दैट टाइम इट वाज नोन एज दिस नेम। तो हो सकता है व्हाट वाज, पूछा जाए व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक, दैट इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसीव्ड 87 बिलियन
एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। हमने 87 बिलियन का उससे लोन लिया एंड फॉर अवेलिंग द लोन क्या हुआ कि दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी प्राइवेट सेक्टर पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो कंपनीज थी, ग्लोबल कंपनीज थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। तो ये हमारे को प्रेशर दिया गया कि आप ये रिस्ट्रिक्शन हटाओ। तो इतना लोन मिला और ये साथ में ये सारी बातें कि अब हटाओ, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, सो दैट वी कैन एंटर योर कंट्री एंड सेल आउट द प्रोडक्ट एंड यूज़ योर रिसोर्सेज। और वो आते भी आप देखते हो तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कितनी है, ये सब इस पॉलिसी के बाद है। बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर the economy, by removing the restriction on the private sector, reduce the role of the government in many areas and remove ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। ठीक है, बहुत तभी हम इतनी, आप किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकते ना जब तक आप सॉलिड रीज़न नहीं देते। अभी तक हम नहीं कर सकते बैन। अब चाइना का प्रोडक्ट बैन थोड़ी कर सकता है इंडिया बिना कोई सॉलिड रीज़न दिए, बिना आपको सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा, देन यू कैन बैन द प्रोडक्ट ऑफ चाइना, अदरवाइज यू कांट। तो अब तो लोग एक दूसरे को खुद ही समझा रहे हैं स्टॉप यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ चाइना। वो एक अलग बात है कि आप खुद क्विट करो। India agreed to the conditionalities of World Bank and IMF and was announced by the new economic policy। तो ये सारी जितनी कंडीशन IMF ने और न्यू वर्ल्ड बैंक ने लगाई, इसके लिए गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। ये बड़ी फेमस पॉलिसी है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी माना गया, क्योंकि बहुत हम देख लो तुम कितनी दिक्कत में थे, अभी तुम डिस्कस कर रहे थे जो। द थर्स्ट ऑफ द पॉलिसी वर टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ मोर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। ये पॉलिसी बनी, क्या था कि आप तो एक तो बैरियर हटाओ ताकि बाकी फर्म्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो फर्म एंटर कर सकें और प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर सके। दिस सेट ऑफ पॉलिसी कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक को कहते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये दो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में दो सेट ऑफ पॉलिसी बनाई गई। क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द सेट ऑफ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट्स आई एम गोइंग थ्रू दिस NCERT बुक। नाउ स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या है आपके, देखो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। शॉर्ट टर्म आपके जो मेजर्स का मतलब जो भी आप पॉलिसीज अडॉप्ट करते हो, इंटेंडेड, क्या इंटेंशन थी इसकी, टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। ये बहुत मेजर दो चीज़ें हैं, एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिले, इंपोर्ट घटे, और इन्फ्लेशन यानी कि जो हमारी कंट्री में लगातार राइज एंड प्राइस हो रहे हैं हर चीज़ के, एसेंशियल आइटम के, उस पर कंट्रोल किया जाए। ये हमारा था क्या, इसको हम बोलते हैं अपना स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेबलाइज मतलब स्टेबलाइज करे, उसको बैलेंस रखे। इसके बाद टू इन सिंपल वर्ड्स दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। इसको मतलब एक सिंपल वर्ड्स में बता रहा है। ऑन द अदर हैंड, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात कर रहा है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये लॉन्ग टर्म मेजर पॉलिसी थी। इसका क्या पर्पज था, एमिंग एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी and increasing its international competitiveness of by removing the rigidities in various segments of the Indian economy। धीरे धीरे करके सारी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी हटाई गई, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़े और कुछ ऐसे इकोनॉमी के अंदर ऐसे सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो और ताकि वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बना सके, इंटरनेशनल टाइप का प्रोडक्ट बना सके। इन वेरियस नाउ नेक्स्ट in the various segment of the economy, the government initiated a variety of policy which fall under the three heads। कौन से 3 हेड्स से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक पैरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द 3 हेड विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ठीक है। ये आप करोगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लिबरलाइजेशन। चलो यहाँ तक के क्वेश्चन आई विल सेंड यू, देन वी विल डू लिबरलाइजेशन।